Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Ghazala Amin with Project Quality Management PRM 702 and that is part of your MS Project Management program. अब तक हम लोग 12 lectures cover कर चुके हैं and this would be your 13th lecture. एक और चीज़ reminder है कि I'm hoping that you have started working on your assignment. Quality policy statement भी आपने लिखना है, cause and effect भी करना है. You have to select one case study from the 3 that I've given you. अभी जब मैं अंदर आ रही थी तो एक virtual campus का था quality education made reachable. So that is like a slogan or a quality policy statement, but based on that information they are trying to make sure कि जो quality education है something that we are actually using and teaching on campus in one of the major cities of Pakistan, जैसे इस्लामाबाद campus में हम लोग अपना MSPM program run कर रहे हैं या लाहौर campus में या एबटाबाद campus में, वही education, वही material and sometime even more material is getting to you everywhere in Pakistan. और ये कोई बहुत आसान project नहीं है. I'm sure it takes up a lot of energy, lot of dedication, lot of commitment from a lot of people, but that is what it means. जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी कम्स इन विद अ कॉस्ट. यू हैव टू इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी प्रोडक्ट ताकि जो प्रोडक्ट या सर्विस निकले वो भी हाई क्वालिटी ही हो. सो गुड मटेरियल इन, गुड मटेरियल आउट. विद दैट लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द सेम थिंग इन माय माइंड दैट देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशनल गोल. अच्छा, इस वाले इन स्लाइड्स में आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट अली साजिद साहब, जिनके हमने काफ़ी सारी स्लाइड्स या रेफरेंस मटेरियल उनके मटेरियल से लिया हुआ है. ही इज़ अ रीनाउंड नेम और माशाल्लाह ही इज़ अ वेरी लर्नड पर्सन एंड आई वांट टू थैंक हिम फॉर सम ऑफ द मटेरियल दैट आई हैव gotten from elsewhere, from some of our own libraries or collections. Creating customer value, quality as an organizational goal, and that the quality helps create customer value. It's not just doing it well, but learning to do it better. फिर एक और जो thought process है, it is not only meeting but exceeding customers' expectation. एक और जो concept है, we all should be pretty familiar with it right now, is that it means that we are not only meeting the stated need. वो चीज़ें जो लिखी हुई हैं स्पेसिफिकेशन में या स्टेटमेंट ऑफ वर्क में, वी आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू गो एंड मीट दैट, बट वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू एक्सीड द इम्प्लाइड नीड्स ऑफ द कस्टमर. बिकॉज अदर देन दैट, अगर हम इम्प्लाइड नीड को नहीं मीट करते हैं तो जब एंड यूजर का टाइम आता है, एंड यूजर साइन ऑफ का टाइम आता है, दैट वुड बी द टाइम द कस्टमर वुड गो आउट एंड से आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड बाय द प्रोडक्ट और द सर्विस दैट आई एम रिसीविंग. सो all these things kind of put into context and perspective, हम लोग quality को एक organizational goal की तरह treat करते हैं. It always starts up from the top upper management training से और उनकी commitment, उनकी dedication से, ताकि वही the same kind of message goes down to the entire employee population. कि no, we want to not only meet but exceed customers' expectation. अगर ऊपर से lethargic behavior आता है, ऊपर से चल चलाओ काइंड ऑफ काम आ जाता है कि चलो जी गुजारा कर रहे हैं, 9 से 5 कर रहे हैं, लेट आ रहे हैं, एंड यू स्टार्ट सीइंग लूज एंड्स इन योर मैनेजमेंट, तो वो जो चीज़ है ना, दैट कॉन्सेप्ट, दैट फिलॉसफी बहुत जल्दी नीचे चली जाती है और फिर वो इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, इंटायर सेटअप स्टार्ट्स बिहेविंग इन द सेम वे ऑफ टेकिंग थिंग्स वेरी ईजी. And that is what employee empowerment is. Employees need to understand the strategic vision and mission of the project and the organization. Employees should be empowered कि जब उनको accountability और responsibility है, तो they should be empowered to make certain decisions that will meet the company's vision or mission. ताकि हर employee at every level, not just senior level, mid level and low level management maybe, they are going to start taking decisions that will work in accomplishing the strategic vision and mission and goals of the organization or the company.
हर आदमी, और सिंपल सा मैं एग्जांपल पहले भी यूज करती हूँ और अभी दोबारा करती हूँ कि janitors मोटरवे हाईवे पे, why do you not see garbage on motorway? I usually never see that. उसमें भी तो गाड़ियां चल रही हैं. अगर हम अपने पिंडी की सड़कों पे देखें तो गाड़ियों के अंदर से कीनों के छलके लोग नीचे करते हैं और फेंक देते हैं. जूस पीते हैं, गाड़ी का वो नीचे करते हैं और फेंक देते हैं. कई लोग कहते हैं कि जी पेडेस्ट्रियंस नहीं होते हैं मोटरवे हाईवे पे इसलिए गार्बेज नहीं होता या रबिश नहीं फेंका जाता. I would strongly disagree. There is a commitment to keep the motorway highway clean, abiding law. That means कि अगर आपको पकड़ा है मोटरवे हाईवे पे तो आपको अगर टिकट मिली है तो आपको देनी ही पड़ेगी. There is regulation and there is empowerment, enforcement. ये जो चीजें हैं ये कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो जिस लेवल पे भी हो, मोटरवे पुलिस को कहिए या मोटरवे ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट को कहिए, बट देयर इज अ कमिटमेंट. नाउ एवरीबडी डाउन टू द लेवल ऑफ जैनिटर्स also know that we have to keep this place clean, law abiding, हर चीज enforced. There is a law, rule of law is going on over there and you feel it. When you go down that road, you feel like you're not part of the country where people lovingly throw garbage around them. So that is the difference. Upper management commitment, dedication के साथ जब नीचे जाती हैं चीजें तो नीचे तक employees feel empowered to make certain decisions that will go right with the vision and the mission of the upper management and the organization. Role of management and leadership. Leadership को जब जोसेफ जुरैन कहते हैं, वो अपने वर्ड्स में जब डिफाइन करते हैं, and he did this in 1945, long time ago. But अब देखते हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो वहीं से 50 साल पहले से जो कॉन्सेप्ट्स थे वो वही चलते आ रहे हैं. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट टॉप मैनेजमेंट बी क्वालिटी माइंडेड. इन द एब्सेंस ऑफ सिंसियर मैनिफेस्टेशन ऑफ इंटरेस्ट एट द टॉप, लिटिल विल हैपन बिलो. आज के दौर का जो हम अपनी जिंदगी का एग्जाम्पल देते हैं पाकिस्तान में, और जब हम उसको देखते हैं कि 1945 में एक अमेरिकन फिलोसोफर क्या कह रहा है, तो अब पता चलता है कि ह्यूमन बीइंग्स डोंट चेंज, सर्कमस्टांसेस चेंज, एनवायरनमेंट चेंज, बट जो हमारा दिमाग है ना वो वैसे ही ऑपरेट कर रहा है जैसे 100 साल पहले ऑपरेट कर रहा था. A large percentage of poor quality problems or quality problems are associated with management and they are not technical issues. जब हम अपनी मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर लेते हैं, स्टाइल को इम्प्रूव कर लेते हैं, अपनी कमिटमेंट को इम्प्रूव कर लेते हैं, when we have a mission, then that is the quality of a leader. ताकि जब वो अपने विजन के मिशन के साथ चलते हैं तो उनके साथ जो पीछे पूरी कौम होती है वो भी उसी तरह से उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करती है. That is why it's so important to have good leaders in place, not just good project managers. हम लोग बात तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की करते हैं, मगर एक सिंपल सी चीज है, प्रोजेक्ट मैनेजर डज थिंग्स राइट, मगर जो लीडर है दे डू द राइट थिंग्स. दैट मीन्स टॉक द टॉक, वॉक द वॉक. अपनी आदतों से, अपने बिहेवियर से, अपनी बातों से leaders can actually take the whole nation and move forward, take the whole organization and move forward. Project managers are executors. That means अगर उनको 2 किलोमीटर की रोड बनानी है, they will come up with इतने पैसे लगेंगे, इतना टाइम लगेगा, इस तरह की रोड बनेगी, इतने मीटर वाइड होगी, उसके साइड पे लैंडस्केपिंग होगी. We do things right. 2 किलोमीटर की रोड बनानी है, वो रोड बनाएंगे और अच्छी रोड बनाएंगे. मगर अगर उसके बीच में 200 साल पुराना दरख्त है, फॉर मी एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, if I am given orders to just cut through that 200-year-old tree and make a straight 2-kilometer road, believe me, I will do that. That is my job. With ethics, with professionalism,
मगर उसको 200 साल के दरख्त को keep it as it is intact, I can only suggest. But I am not empowered, I should not have the authority to make decisions कि no, that 2-kilometer road should actually be diverted. एक जो साथ वाला घर है हम उसको खरीदेंगे, उसको डाइवर्ट करेंगे और वो सड़क आगे जाएगी. That is not project manager's job. ये तो अपर मैनेजमेंट या अपर स्पॉन्सर्स का काम है. यूजुअली लीडरशिप स्पॉन्सरशिप के साथ आती है. चले आगे बात बढ़ाते हैं कि क्वालिटी और ऑल दैट अकाउंटेबिलिटी, ट्रेनिंग, कमिटमेंट, डेडिकेशन also has a tag, price tag associated with it. So quality is not cheap. We all know that. Quality comes in with a cost factor. और ये कॉस्ट क्या होती है, हम कितना रिकवर कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. व्हाट इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी? Quality is measured by the cost of quality, which is the expense of non-conformance, the cost of doing things wrong. That means cost of quality वो होती है कि अगर हम इसको follow नहीं करेंगे तो it will come back and haunt us with warranties and guarantees and rework and scrap and rejection of the total lot. अगर हम quality improvise कर लेते हैं तो eventually yes, implementation of quality is coming with a cost, मगर ये सब जो rework, scrap, rejections जो हैं, there is a probability that we will minimize if not totally eliminate it altogether. So quality is measured by the cost of quality, which is the expense of non-conformance. And what is non-conformance? Non-conformance is the cost of doing things wrong. According to Juran, on quality by design, cost of poor quality are huge, but the amounts are not known with precision. कोई measurable data इतना नहीं है. You can guess certain projects में different data आ रहा होता है, मगर ये कोई written rule नहीं है कि जहाँ आप लिख रहे हैं कि इतना हमने spend किया और इतना हमने को payback मिल गया. In most companies, the accounting system provides only a minority of the information needed to quantify this cost of poor quality. हो सकता है हम कोई market trend को देखें, हो सकता है कि हम इस तरह से उसको evaluate करने की कोशिश करें कि पिछले साल when there was no quality implementation हमारा market में इतना सामान बिका और इस साल जब हमने quality implement कर दी तो हो सकता है market place में हम ज़्यादा आ गए. Last year इतने rejections आए थे या returns आए थे और इस साल अगर 100 आए थे तो इस साल हमारे 50 आ रहे हैं. ठीक है, मगर that is not a guarantee. हो सकता है कोई नया product हो आपका पिछले साल और because it was something new in the market, people were really going out and buying it, even though the quality could have been poorer than today, which is 2 years later or a year later. मगर ये जो चीज़ें होती हैं ना थोड़ी सी different होती हैं और situations भी different vary कर सकती हैं. तो ये कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि written in stone. It cannot be quantified that easily. But to a certain level, we can easily quantify those numbers. Media snapshot. Let's look at what happened. What kind of made people very aware of project quality management? यहाँ तक के आज in modern project management, we talk about total quality management और जो constraint है हमारा, वो जो triangle है 3 नोड के साथ, project management, project is constrained by the cost, by the schedule and the requirement. उसके बीच में एक चीज़ चलती जा रही है, that is called the quality. That means हम project को within time, within budget, within the scope or the requirements of the customer deliver कर रहे हैं, but all of that is being delivered with quality, right? So ये जो change है, what happened? What changed this whole situation or scenario? In 2004, a study by Nucleus Research estimates that spam, hackers, mails hitting the system will cost large companies
अब ये quantifiable data है, nearly $2,000 per employee in lost productivity in 2004 alone. ये तो बहुत significant number है. Spam में emails आ रही हैं. अभी भी think about it, अगर अब तो हम लोग इतना ट्यून्ड हो गए हैं कि कई दफा अननोन ईमेल्स होती हैं, वो खुद चला जाता है, रिजेक्ट हो जाता है. कुछ विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बगैर खोले हुए उसको डिलीट कर देते हैं. मगर लुक एट द अमाउंट ऑफ ईमेल्स दैट इज कमिंग टू अस. इट्स जस्ट रिमार्केबल एंड समटाइम माइंड बॉगलिंग. अगर आज मैं सारी ईमेल खोलना शुरू कर दूं और सबको रीड करूं ऊपर से नीचे तक, तो बिलीव मी, मेरा 3 घंटे एवरी डे विल बी लॉस्ट जस्ट डूइंग दैट. और अगर मैं उसको आंसर करना शुरू कर दूं तो 3 घंटे अब वो 6 घंटे बन जाएंगे. दैट मीन्स मेरे पूरा दिन ईमेल्स को सवाल पढ़ने में, सवाल के जवाब देने में. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम नॉट आंसरिंग ऑल ऑफ इट, बट यू हैव टू काइंड ऑफ गो थ्रू इट, look at what is really worth my time and focus on the queries that are directly related to me. Or for informational purpose, I browse through it. Then how many training कहाँ हो रही हैं, न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है, people sending us a lot of material, इस तरह से jokes, pictures. Last evening, I think मेरे mail box में, because मैंने परसों नहीं चेक किया था, all of a sudden 110 emails थी. Unread emails were 110. In matter of 24 hours, I was able to collect so many emails. Now think about it. That is taking up not only just my time, but my organization's time also. And that is a problem that is not just me, but it's everybody, more in the corporate sector than maybe academia, because academia में हम लोगों के जो questions होते हैं, they're directly related to us and it needs most probably our queries or research oriented kind of questions. Despite investment in software to block spam, this organization had already invested in spam control और उस पर भी $2,000 per employee per year lose कर रहे थे in lost productivity. Spam currently accounts for more than 70% of total email volume worldwide. 70%. Huge number. In just 1 month, in August 2003, and this is old data, think of where we are right now. Every child, every teenager, every person has an email account. I mean, situation तो multiply हो गई है, multifold. At least 50 new internet viruses surfaced. And losses related to computer viruses cost North American companies about $3.5 billion. Businesses have suffered at least $65 billion in lost productivity because of computer viruses since 1997. ये जो issues हैं is focusing our attention on wrong things and taking quality productive work outside of our work environment. In 1964, and we are talking about the poor quality cost, what happens when we do not implement quality techniques and tools and methods? In 1964, IBM published its first report. Long time ago, मगर ये पहली report निकली थी. That included poor quality costs for internal component manufacturing. Sub-assembly, final machine test, system test, and the first 12 months at customer location for 1620 system. इनका जो पहला system था, पहला नहीं, जो system था called 1620, उसमें IBM ने पहली दफा एक report निकाली और उसमें उन्होंने टारगेट किया कि पुअर क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन, कि पुअर क्वालिटी और लैक ऑफ क्वालिटी सिस्टम्स और मेथड्स की वजह से हमको कितने इश्यूज आ रहे हैं. Q100 report, उसका नाम निकला. During the following months after publication of this report, expanded to cover many other IBM systems. That means IBM started focusing on
this awareness that if you don't implement quality techniques, then it'll cost you and it'll come and bite you back in coming months, in coming production cycles. So let's get our head together and try to take this production to little phases and ensure what Durans and Crosbys and जो भी नाम है, बहुत सारे नाम की बात हमने की थी, और डेमिंग्स हैं, ये जो आपको बता रहे हैं इसको पढ़ो, सीखो और समझो, क्योंकि ये विदाउट दिस कन्फॉर्मेंस टू क्वालिटी इट्स रियली गोइंग टू कम एंड बाइट यू बैक. इट विल रियली कम बैक एंड हिट यू फ्रॉम प्रोडक्टिविटी परस्पेक्टिव. क्वालिटी इज फ्री. अभी तो हम बात कर रहे हैं कि क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट है, देयर इज नथिंग एज फ्री, मगर अब हम कह रहे हैं कि क्वालिटी इज फ्री. क्वालिटी क्यों फ्री हो सकती है? क्वालिटी इस तरह से फ्री हो सकती है आसान लफ्जों में कि टू इम्प्लीमेंट क्वालिटी मेथड्स, जो आपकी कॉस्ट आ रही है, दैट इंक्लूड्स ट्रेनिंग, दैट इंक्लूड्स इम्प्लीमेंटेशन, दैट इंक्लूड्स द क्वालिटी एश्योरेंस पर्सन's paycheck, that includes putting quality control person and the techniques. ये सारे जो cost है eventually will pay back in form of bigger market share, will pay you back in form of lack of rework or rejections or warranties and guarantees that come back and haunt you. ठीक है, या मेंटेनेंस कॉस्ट में भी कमी आ जाती है. इस तरह से इधर जो कॉस्ट लग रही है पे बैक के टाइम पे वो सारा नेग्लिजिबल हो जाता है, दैट मीन नेगेट हो जाता है दोनों का असर, और इवेंचुअली क्वालिटी फ्री हो जाती है. फॉर एवरेज कंपनी द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इज अबाउट 25% ऑफ टोटल सेल्स. सिर्फ 25% या क्वार्टर ऑफ इट इज स्पेंट ऑन इम्प्लीमेंटिंग क्वालिटी. जब आपका मार्केट शेयर बढ़ जाता है, जब आप उसको इवैल्यूएट करते हैं एक साल से दूसरे साल में, तो आपको पता चलता है कि क्वालिटी ना सिर्फ फ्री है, मगर क्वालिटी इज जस्ट 1/4. इम्प्लीमेंटेशन में जो कॉस्ट लगती है, मार्केट की जो रिस्पॉन्स होती है, वो उसका सिर्फ 1/4 हिस्सा होता है. कॉस्ट ऑफ प्रिवेंशन is a fraction of cost of fixing mistakes after they are made. अब याद करते हैं प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में. प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में शुरू में अगर आप अपने इश्यूज को मिनिमाइज कर लें, तो सबसे ज्यादा आपके कॉस्ट और रिसोर्सेज कहाँ यूज हो रहे हैं? एग्जीक्यूशन में. अगर आप अपफ्रंट ही उन क्वालिटी इश्यूज को फिक्स कर लें या इश्यूज विद मैन्युफैक्चरिंग को फिक्स कर लें, तो जब वापस आके फिर आपको फिर एक पूरा साइकिल चलाना हो, ऑब्वियसली कॉस्ट तो कम हो जाएगी ना. द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. इन्वेस्टमेंट इन प्रिवेंशन कैन ड्रास्टिकली रिड्यूस टोटल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. कल मैं किसी को एक एग्जाम्पल दे रही थी कि एक मैन्युफैक्चरिंग लाइन है फ्रॉम A to Z. या तो ये कि आप पूरा प्रोडक्ट बना लें और फिर एट द एंड ऑफ इट आप इंस्पेक्ट करना शुरू करें. रादर इफ यू ब्रेक दिस प्रोसेस फ्रॉम A to Z टू प्रोसेस A, आप मेक श्योर कि यू टेस्ट इट ऑल. जब A से B में जाता है तो यू ऑलरेडी टेस्टेड दिस सिस्टम आउट. B में जाता है, B में प्रोसेस होता है, फिर आपने B से C में डालने के वक्त एक और सेट ऑफ टेस्ट केसेस किए. सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं पैंट मैन्युफैक्चरिंग की. जब हम बात करते हैं, ये जैसे ड्रेस पैंट्स बन रहे होते हैं, असेंबली लाइन है, हो सकता है चाइना में वॉलमार्ट के लिए 1000 पैंटें बनती हैं एक दिन में. या तो ये कि जब 1000 पैंटें बन जाती हैं, शाम को हम निकालते हैं उनमें 1000 में से 50 पैंटों को निकालते हैं और उसको डिफरेंट क्राइटेरियाज में टेस्ट करते हैं. कलर फास्ट है या नहीं, स्टिचिंग सही है या नहीं, जिप काम कर रही है या नहीं, इलास्टिक सही है या नहीं, हेमिंग है नहीं है. और मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है. अगर इसी को हम ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, जब पहली दफा वो कपड़ा आया, प्रोसेस A इज मेकिंग श्योर दैट द कलर इज फास्ट. दैट मीन्स कलर उसका वो ब्लीड नहीं कर रहा, बह नहीं रहा है. जब पानी में डालते हैं तो निकलता नहीं है. बिकॉज एक बात याद रखें, पाकिस्तान में ज्यादातर हम हाथ से धोते हैं, या और अमेरिका वगैरह में या डेवलप्ड नेशंस में इट ऑल गोज
into the washing machine. अगर एक चीज का भी कपड़े का रंग निकलता है तो जो पूरा लॉट होता है उस पे वो कलर लग जाता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कलर फास्टनेस के लिए पहले में चेक हो गया. दूसरे में जब उन्होंने लेफ्ट लेग को काटा तो हमने उस वक्त लेफ्ट प्रोसेस बी में मेक श्योर कि द मेजरमेंट्स आर करेक्ट, इट्स बिन करेक्ट, कट करेक्टली, कोई रैगडी एज नहीं है. सी में जब जाता है तो अब सारे राइट लेग्स को हमने उसी प्रोसेस के लिए चेक कर दिया. फिर हमने उसकी सिलाई को चेक कर लिया. यहां तक कि जब प्रोसेस जी तक पहुंचता है, जब आपके हाथ में एक कंप्लीट पैंट आती है तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो 1000 पैंटें जो आज सुबह 9 बजे स्टार्ट होके 5 बजे शाम तक आपके हाथों में आती हैं, there is a great probability that there is no defect in it. Because during process A to Z, there were multiple opportunities for you to have picked out things that could be going wrong. So rather than rejecting at the end, and worst case scenario is you don't test it at all, या 5 या 6 जो आपने 1000 पैंटों से पिक की वो तो सही हो गई, मगर उनमें 6 या 7 ऐसी पैंटें थी जो किसी मयार पे पूरी नहीं उतर रही थी, और जब वो कस्टमर के हाथ में चली जाती हैं और वापस आती हैं तो ये दुनिया इंटरनेट की है. यूजुअली यू विल स्टार्ट सीइंग इश्यूज विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट, और 6 या 7 कस्टमर अगर ज्यादा कंप्लेन करना शुरू कर दें तो इट कैन डैमेज द होल कंपनीज इमेज. एंड दैट इज व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट इन दिस वर्ल्ड to focus on quality and ensuring that the customer gets a no issue product or minimal issue product in their hand. Investments in prevention can drastically reduce the total cost of quality. What does Wikipedia have to say about cost of quality? In process improvement efforts, quality cost or cost of quality is a means to quantify the total cost of quality related efforts and the deficiencies. It was first described by Armand Feigenbaum in a 1956 Harvard Business Review article. Long time ago, but believe me, it wasn't that long time ago. Prior to its introduction, the general perception was that higher quality requires higher cost, either by buying better materials meaning the raw material that is going into, or machines, or by hiring more labor or more skilled labor. अच्छा, concept अभी भी वैसे ही है. Furthermore, while cost accounting had evolved to categorize financial transaction into revenues, expenses, and changes in shareholder equity, it had not attempted to categorize costs relevant to quality, which is especially important given that most people involved in manufacturing never set hands on the product. वही चीजें जो अब हमने पिछली स्लाइडों में बोली है, अब हम उसी कॉन्सेप्ट को एक तरह से समराइज कर रहे हैं. And it is very interesting to see that what a lot of people are saying are said in a very summarized manner in Wikipedia. By classifying total quality related entries from a company's general ledger, management and quality practitioners can evaluate investments in a quality based on cost improvement and profit enhancement. इसको हम कहते हैं कि क्वालिटी तो फ्री हो जाती है. आपने अगर 200,000 रुपीस खर्च किए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी में, तो आपका जो मार्केट बेस है, रिजेक्शंस की कमी है या एलिमिनेशंस हैं, वो जो होता है तो हो सकता है कि ये 200,000 is coming back with 800,000 of bigger market share. In that scenario, obviously quality is free. तो फिर कौन ऐसी कंपनी होगी या ऑर्गेनाइजेशन होगी जो इसके आउटरीच को या उसकी वेट को नहीं अंडरस्टैंड करेगी? पर अभी भी बहुत है. हम लोग जब मार्केट में होते हैं और जब हम बात करते हैं बहुत से लोगों के, पीपल हु डोंट हैव द विजन और लैक ऑफ विजन, they are in this situation to make a quick buck.
They don't think of customer base. They don't think of the customer's child coming back to them for your product or your service. They are in it to make a quick buck and then disappear or run away. अब फिर अनफॉर्चुनेटली ही बोलूंगी कि हमारे मार्केट में बहुत ज्यादा लोग ऐसे ही हैं जो दे आर ओनली इन टू मेक अ क्विक बक किसी तरह, और फिर सोच के क्या, अरे हमने तो कस्टमर को बेवकूफ बना दिया। वेल, कस्टमर बेवकूफ नहीं बन सकता। कस्टमर के पास अब बहुत सी चॉइसेस हैं। एक दफा उसने अगर खराब प्रोडक्ट ले लिया आपसे, अगली दफा वो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। एंड द वर्ड स्प्रेड्स लाइक जंगल फायर। सो अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, कॉस्ट ऑफ कन्फॉर्मेंस की बात करेंगे और कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस की भी हम बात करेंगे। अच्छा, दो चीजें हैं कॉस्ट एरियाज में। अभी हम बात करते हैं प्रिवेंशन कॉस्ट की। व्हाट डज प्रिवेंशन कॉस्ट मीन? इट अराइजेस फ्रॉम एफर्ट्स टू कीप डिफेक्ट्स फ्रॉम अकरिंग एट ऑल। यानी कि एक जो पैंट की प्रोडक्शन लाइन थी, फ्रॉम गेटिंग द मटेरियल टू गेटिंग द राइट एंड प्रोडक्ट, उसको हमने डिफरेंट प्रोसेसेस में सब डिवाइड कर दिया और हर प्रोसेस में हमने कुछ टेस्ट डाल दिए ताकि ए से बी में अकॉर्डिंगली वो डिफेक्ट ना जाए, बी से सी में जो प्रोसेस का डिफेक्ट है वो ना ट्रैवल करे, और एंड में जी तक होते होते अगर इफ एवरीथिंग हैज गॉन वेल और सब ने ऑनेस्टली अपना काम किया है, ऑनेस्टी के साथ अपने टेस्ट केसेस रन किए हैं, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग गुड मटेरियल, गुड प्रोडक्ट एट द एंड, ये बहुत एक जीती जागती हकीकत बन जाएगी। सो what are the examples of prevention cost? How do you prevent issues from traveling through the production line or through the manufacturing assembly line? Quality planning. PMI का जो प्रोसेस, पहला प्रोसेस था वो क्या था? प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना। प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में था क्वालिटी प्लानिंग, फिर क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। सबसे पहला जो प्रिवेंशन कॉस्ट है वो है क्वालिटी प्लानिंग। दैट मीन्स यू हैव प्लान्ड आउट एग्जैक्टली कि कितने प्रोसेसेस हैं और हर प्रोसेस के एंड में किस तरह का टेस्ट केस हम रन करेंगे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन क्वालिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, quality training and workforce. Who will be running the test cases? Do they know what is going on? How will they come up with the pass and reject or fail criterias? ये सब की बात हम tools and techniques में कर चुके हैं पिछले lectures में। Systems development and management. फिर वही वाली बात है, management needs to tell and enforce and empower their employees that our objective is to make sure that the customer gets this pant with zero errors, no flaws. Because आज हम 1000 पैंटे बना रहे हैं, in 2 years I want to expand my line and I want to start making 2000 pants in a day. And I want to make sure no matter what it takes, if there are issues, please get the helpline, call us, get us activated. We are going to come and we are going to make sure that the quality assurance team is checking and verifying the results. Management commitment, management enforcement and empowerment. Next one is the product design verification. ये सारी prevention cost है। ना issue होगा, ना quality problems होंगे, ना end तक हम लोगों को कोई defective product या service मिलेगी। दूसरी जो है वो अप्रेजल कॉस्ट है। अप्रेजल कॉस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? इट अराइजेस फ्रॉम डिटेक्टिंग डिफेक्ट्स वाया इंस्पेक्शन, टेस्ट एंड ऑडिट। आप टेस्ट रन करते हैं और आपको अब इश्यूज पता चलते हैं। दिस इज द टेस्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ परचेस मटेरियल। रॉ मटेरियल को चेक कर रहे हैं आप प्रोसेसिंग में। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, रिजेक्शन पासिंग क्राइटेरियाज क्या हैं, क्या नहीं है। अगर थोड़ा सा कलर निकलता है मटेरियल का या कपड़े का, अगर हम पैंट का ये एग्जांपल कंटिन्यू करें, तो इज इट ओके, या बिल्कुल पानी क्लियर होना चाहिए। ये भी तो क्राइटेरियाज है ना। somebody needs to identify कि पहली दफा अगर कपड़े को हम पानी में डाल रहे हैं या गर्म पानी में डाल रहे हैं, कितने टेम्परेचर पे डाल रहे हैं। अगर हल्का सा कलर ब्राउन हो जाता है,
Is it okay or is it not okay? Does the label in your pant need to say only wash in cold water? Or the color is so steadfast कि अगर आप इसको boiling hot water में भी डाल दें तो भी रंग नहीं निकलेगा, है ना? These are the criteria that need to be identified. फिर inspection, testing, checking labor, making sure that they are skilled enough to do the work that is being required of them. Test and inspection of the equipment. Quality audits and field testing. Field testing डायरेक्टली अप्रेजल कॉस्ट के साथ होती है. दैट मीन्स आप जाके सर्विस करवाइए, कस्टमर सेटिस्फैक्शन रिजल्ट्स लाइए, या और तरह तरह के टेस्ट होते हैं. पैंट तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है ना. थिंक अबाउट यू परचेसिंग अ कार. आपने सुजुकी मेहरान खरीदी है और वुडंट यू वांट कि आपके पास जो सुजुकी मेहरान आए उसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो? और यू वांट टू बी वन, or is it okay for you to be that one person out of the 10 or the 15 people who purchased the vehicle in that day? अब आप बेचारे के साथ you became the scapegoat and now you are the one with issues of quality in your Suzuki Mehran. गाड़ी तो एक बड़ी purchase है ना, तो you would rather have a car with no defects at all. कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस, ये भी अगर हम दो में बात करें, एक तो इंटरनल फेलियर है और एक एक्सटर्नल फेलियर है. सो व्हाट इज द इंटरनल फेलियर कॉस्ट? इट अराइजेस फ्रॉम डिफेक्ट्स कॉट बाय इंटरनली एंड डेल्ट विद बाय डिस्कार्डिंग और रिपेयरिंग द डिफेक्टिव आइटम. दैट मीन्स ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यू हैव फाउंड डिफेक्ट्स, यू आर लुकिंग एट इट, और आपने पहले ही कस्टमर के हाथों से में जाने से पहले ही उसको डिटेक्ट कर लिया और आपने रिजेक्ट कर दिया या फिक्स कर लिया या रिपेयर कर लिया. एग्जाम्पल्स इन दिस केस वुड बी स्क्रैप, रीवर्क, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कॉस्ट. ठीक है, ये सारे चीजें, मगर ये अब इंटरनल फेलियर है. दैट मीन्स विद इन द मैन्युफैक्चरिंग लाइन, विद इन योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज ऑफ द टेस्ट केसेस या जो भी आपने सब डिवाइड कर दिए हैं प्रोसेसेस को, उनके बीच में आपने ये इश्यूज पकड़ लिए और इनको रिजॉल्व करने की कोशिश की. अभी तक कस्टमर के हाथों में चीज नहीं गई है. मगर जो दूसरी कैटेगरी है वो है एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट की. इट अराइजेस फ्रॉम डिफेक्ट्स दैट एक्चुअली रीच द कस्टमर. अब किसी तरह से स्केप होके निकल गया है प्रोडक्ट और अब ये कस्टमर के हाथों में चला गया है. अब इसकी क्या कॉस्ट है? कंप्लेन्स इन वारंटी, कंप्लेन्स आउट ऑफ वारंटी, यानी कि जो आपने वारंटी दी थी कि 3 महीने के अंदर अगर ये इशू आया तो विल फिक्स इट, एक तो ये हो गया. प्लस 3 महीने गुजर जाते हैं और 3 महीने गुजरने के बाद जो पहला दिन होता है, जो हम लोग लाफिंगली कहते हैं कि जब तक वारंटी डेट होती है कोई चीज खराब नहीं होती, बट जिस दिन वो वारंटी डेट खत्म होती है हम अपने जो गुड्स होते हैं उनमें इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं. टीवी, माइक्रोवेव, फ्रिज, समटाइम्स गाड़ी में भी ये सारे इश्यूज होते हैं. वारंटी डेट तक हर काम सही चल रहा होता है. वेल, jokes aside, we are focusing on project quality management right now in our lecture, so let's focus on it. Complaints that are out of warranty. फिर product service, product liability. Worst case scenario is the product recall and loss of reputation. टोयोटास की बात करते हैं, जनरल मोटर्स वगैरह में जब जुरैन और डेमिंग्स और क्रॉसबीज की बात नहीं सुनी गई तो ये लोग चले गए जापान. जापान जाके इन्होंने अपनी फिलॉसफी को सेल किया और जापान ने होल हार्टेडली क्वालिटी को इम्प्लीमेंट किया और टोयोटाज आर वेयर दे आर. वी ऑल नो दैट कि इन मार्केट शेयर इंटरनेशनली इट्स अ बिग चंक ऑफ द मार्केट. जापान सम टाइम अगो मेंट चीप प्रोडक्ट्स, और आज मेरे ख्याल में 30 सालों के अंदर अंदर आज जिस प्रोडक्ट पे जापान का स्टैंप होता है हम उसको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट परसीव करते हैं. दैट इज हाउ दे हैव कम दिस फार. अब प्रोडक्ट रिकॉल की बात कर लेते हैं. प्रोडक्ट रिकॉल मुझे याद है 2-4 साल पहले, नॉट दैट लॉन्ग अगो, टोयोटा के किसी जो पीछे का जो सीट बेल्ट था वो सही से लग नहीं रहा था.
अमेरिका में जब ये गाड़ियां गईं तो दे हैव अ सेफ्टी, चिल्ड्रन आर पुट इनटू कार सीट्स और उसका हार्नेस किया जाता है. उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था कि अगर वो सही से लगता, सही से बंद नहीं होता था तो वो लैच खुल जाता था और बच्चे की जो कार सीट थी वो obviously there is a probability कि वो lose हो जाती और now it is not tied securely in the back. Toyotas usually are bought by mothers with little children and used for transportation back and forth. In that situation, having that flaw was a big issue. Toyota recalled मल्टीपल, मुझे नहीं पता कि हजारों गाड़ियों को उन्होंने रिकॉल किया, इफ नॉट मोर. दे ट्राई टू फिक्स इट, मगर जब फिक्सिंग से काम नहीं गया तो कार्स वर एक्चुअली रिकॉल्ड. मेजर डेंट इन देयर बिजनेस, मेजर डेंट इन देयर बिजनेस. दैट मीन्स कि समवेयर, समहाउ दैट टेस्ट वाज नॉट डन प्रॉपरली और सबकी आंखों से निकल के वो कस्टमर के हाथों में चला गया. और कस्टमर के हाथों में जब चला गया और जब अब इश्यूज आए तो इंटरनेट वाज फ्लडेड विथ कमेंट्स, समटाइम नेगेटिव कमेंट्स, समटाइम पोलिटिसाइज्ड कमेंट्स, जो भी रीजन था. बट देन नाउ थिंक अबाउट इट, इफ अ यंग मदर विथ 2 little children with 2 car seats in the back wants to go out and purchase a car, wouldn't she think twice about purchasing a car that has Toyota stamp on it? 2 years ago, she would have been eager to buy that product. मगर with that issue, even though recall हो गया, fix हो गया, और most probably अब नहीं वो issue आएगा, मगर अब वो market base में loss आना शुरू हो गया Toyota के लिए, because the market that they were targeting no longer feels very secure in buying their product. इस तरह के तो लाखों एग्जाम्पल्स हमारी किताबों में और अखबारों में बंद हैं. द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. Cost of quality is the total price of all efforts to achieve a product or service quality. It includes work that conforms to the requirements as well as the work resulting from non-conformance to the requirements. Quality programs also have cost, which includes training program, statistical process control charts, cost to build it right the first time, etc. Cost of quality comes in with a price tag. उसमें जो चीज़ें हमने सारी जो बात कर ली हैं पिछले लेक्चर्स में वो सारी इम्प्लीमेंट होती हैं. और जब हम क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, टूल्स एंड मेथड्स और सॉफ्टवेयर पे इन्वेस्ट करते हैं, it all comes in with a price tag and all becomes part of implementation of quality processes within the assembly line. Types of quality cost. Internal failure, external failure, appraisal, prevention. Measurement and test of equipment. Internal failure क्या होता है? It's the cost incurred to correct an identified defect prior to shipment to the customer. वही जो अब हमने पीछे देखा था, internal failure within manufacturing आपने catch कर लिया. Next one is the external failure. अब वो product service आपके customer के हाथ में चला गया है, अब वो उसको वापस भेजता है या आपको के पास आता है to fix that error. It's the cost incurred due to errors detected by the customer. Internal, within the manufacturing process. External, it has been shipped out and it is now coming back from the hands of the customer. The appraisal cost. It's the cost incurred to determine the condition of the product. So that is the appraisal cost of it. The prevention. Cost incurred to reduce failure and appraisal cost. So prevention is हमने सारे प्रोसेसेस इंप्लीमेंट कर लिए और हमने इंस्पेक्शन तक जाने तक वेट नहीं किया. जब प्रोडक्ट लाइन निकलती है, प्रोडक्ट किसी प्रोडक्ट लाइन से बन के निकलती है मैन्युफैक्चर होके या सर्विस डिलीवर होती है, एट दैट पॉइंट इन टाइम probability of having issues or quality issues is very, very minimal, if not totally eliminated during the process. The measurement and the test equipment.
It's the capital cost of equipment used to perform prevention and the appraisal activities. जितनी भी हमने क्वालिटी कंट्रोल टेक्निक्स टूल्स की बात की थी, कंट्रोल चार्ट हो गए, एसपीसी हो गया, जो भी है, ये या तो ये क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्टिंग की बात हो गई, ये जो सारी चीजें हैं ना, ये मेजरमेंट एंड टेस्ट इक्विपमेंट में आता है. कैलिब्रेशन ऑफ द टेस्टिंग सिस्टम्स, और भी 1000 नाम ले सकते हैं, टाइम ऑब्वियसली नहीं होता है, मगर all the measurement and the test equipment also comes in with a price tag. You have to go out manufacturing. The higher the quality of the product, of the test equipment, more reliable it is to ensure that your product is conforming to the quality standard. And a garbage in, garbage out, good material in, more predictability and more reliability of the system at the end. That was the cost of quality. अब हम cost of non-quality की बात करते हैं. Cost of non-quality is estimated to be 12 to 20% of sales versus the should cost of 3 to 5% of sales for a quality program. 25% की पीछे भी हमने बात की थी कि it doesn't take that much. अगर आप उसको equate करें of the market share, तो फिर वो सिंपल वही चीज बराबर हो जाती है, with the payback being 4 times larger than the initial investment of quality processes that were introduced in the system. Waste of time and material, rework of poor quality products and additional material for rework, delays in schedule, product and service image and the corporate image. अब हम वही बात दोबारा कर रहे हैं कि cost of non-quality, it all comes back and haunts us. Sometimes इतना tarnish हो जाता है image because of our products कि we end up losing, और जब हमारे पास competitors आ जाते हैं with similar kind of products, so people really tend to go to them कि जी नया product है, I'm sure अच्छा होगा, अगर आपने अपना market base strong नहीं किया है. अभी अगर हम बात करें, कल ही दूध लेने गए थे तो नेस्ले मिल्क पैक भी था, और तरह तरह के नए नए भी दूध के डब्बे वहाँ पे पड़े हुए थे, ग्रो और हलीब एंड इवन ऑल्पर्स, इवन दो ऑल्पर्स हैव इन्वेस्टेड अ लॉट इन एडवर्टाइजमेंट, मगर नेस्ले मिल्क पैक ने एक नेम ब्रांड सा बना लिया है. जब आपको डब्बे वाला दूध चाहिए होता है ना, टेट्रा पैक, यू यूजुअली जस्ट से मिल्क पैक दे दें, बिकॉज they did not disappear. They must have, चाहे वो प्रोडक्ट जो भी हो, एडवर्टाइजमेंट की वजह से या अवेलेबिलिटी या रिलायबिलिटी की वजह से, जो भी है, इवन दो कि हमने बहुत सी चीजें देखी हैं, ये सुनी है कि इसके अंदर क्या होता है, पता नहीं दूध सही है या नहीं है, जो प्रिजर्वेटिव्स डाले जा रहे हैं, दे आर इंजूरियस टू हेल्थ, जिस तरह का भी कैंपेन चली है, मगर अभी भी अगर आपको दूध लेना है और आपको टेट्रा पैक का दूध लेना है, तो यूल जस्ट गो आउट एंड से कि नेस्ले मिल्क पैक दे दें. These are the brand, not only just the brandings, but stability of the product. That means they've stayed in the market with a product for so long that typically has good taste and stays fresh for a longer period of time. Hence, market share, safe customer base. Conformance versus the non-conformance. अब दो सिंप्लीफाइड, पीछे स्लाइड्स में हमने डिफरेंट बातें कर ली, अब हम इसको दो सेगमेंट्स में डाल देते हैं. Conformance to quality, that means quality processes have been implemented, we have done our little homework, and now these are the cost when you want to implement quality processes. इसमें cost कहाँ आती है, कहाँ पैसे खर्च होते हैं? Planning, training and indoctrination, product design and validation, process validation, test and evaluation, quality audits, maintenance and calibration, and field testing. You have implemented, or your organization have implemented quality techniques, और इन सब चीज़ों में आपके पैसे खर्च हो रहे हैं,
So those are the cost of quality for conforming to quality process. Quality non-conformance also has a price. So that comes in as a non-conformance to quality. और इसमें क्या क्या आ रहा है? Scrap, rework, the additional cost of material, warranty repairs, complaint handling, external हो गया, customer के हाथ में चला गया है, they are coming back and have a lot of complaints against your product. Liability judgments, worst case scenario, product recall, आदि इस्तेमाल की हुई चीज़ें, यूज़ होता हुआ प्रोडक्ट, चीज़ें जो बिक चुकी हैं उस पे आपने बोनसेस दे दिए हैं, उस पे आपने अपने एक्सपेंशंस कर लिए हैं. नाउ ऑल ऑफ अ सडन customers are so fed up that you have to get it all back and most of it will be considered junk. What happens? Companies go out of business, companies shut down their doors and lay off millions of employees based on significant recalls. Field service and then the expediting. ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर आप quality process को implement नहीं करते हैं, it will still come back and haunt you. And when they come back to haunt you, that will come up and hit you with a bigger cost than the cost of conformance. Simple words में cost of conformance ये वाला एक column हो गया और cost of non-conformance, even though आपको लगेगा कि जी product चला गया, हाथों से बिक गया और अब क्या फिक्र है? फिक्र होनी चाहिए because it will come back and now it will come back with a bigger cost and haunt you for the rest of your life. The two main areas can be also be split further as shown below. Cost, एक तो ऊपर हो गया cost of control which is the conformance, उसमें prevention और appraisal आ गई. Cost, the cost of failure to conform or control, this is the non-conformance area और इसमें दो चीज़ें आती हैं, internal failure और external failure. Internal failure obviously manufacturing में जो कैच हो रही हैं और external failure वो है जो आपके कस्टमर के हाथों में चली जाता है प्रोडक्ट and they complain and come back. Cost of conform, prevention और appraisal की हमने बात कर ली है. All of these definitions, ideas, terminologies have been subsequently और बहुत clearly defined किए जा चुके हैं पिछले slide में. The types of quality cost. Cost of compliance. It's the preventive cost. Prevent product defects. पूरा जो quality management का target है या philosophy है या idea है वो ये है कि inspection, prevention versus inspection. Prevent the issues from happening. Don't focus your attention at the end of the product completion to inspect it all. 100% inspection is very time consuming and time is money. So prevent it. Don't let it fall down to the level where at the end of the day जी 1000 पैंटों में से आपको पता चले कि जी there were so many defects या सारे ही लेफ्ट लेग कट गई या सिलाई डिफरेंट कलर के थ्रेड से हो गई या सिलाई उधड़ना शुरू हो गई. Don't take it to the point where you would have to reject or scrape off the 1000 pans that have been made at the end of the day. Prevent it from happening. Yes, now you may not be able to produce 1000 pans because ये जो टेस्ट हो रहे हैं ये भी स्लो डाउन कर देंगे, मगर एटलीस्ट अगर आपने 800 पैंटें भी बना ली एट द एंड ऑफ द डे, थिंक अबाउट इट कि यू विल कैच अप. अगर हफ्ते में एक दफा लॉट खराब होता है तो यू ऑलरेडी कॉम्पनसेटेड फॉर द अमाउंट ऑफ द रिड्यूस्ड इन्वेंटोरी या रिड्यूस्ड अमाउंट दैट वाज प्रोड्यूस्ड. द नेक्स्ट वन विल बी योर अप्रेजल कॉस्ट. The monitor and compensate when prevention fails. Appraisal cost is the monitoring and the compensation when prevention fails.
The cost of non-compliance is the failure cost. Internal losses, the scrap or the rework. External losses, it's the warranty work, the customer complaint departments, the litigations and the product recalls. Product recall की अभी बहुत बात की है, मगर litigation भी एक बड़ी important चीज है. चाइना में जब दूध गया तो उन्होंने कोई एक चीज याद है 2-4 साल पहले या शायद 5 साल 6 साल हो गए होंगे, उनमें एक प्रोडक्ट उनके दूध में निकला, पैक्ड दूध में, दैट वाज कोई एग्रीकल्चरल का कोई प्रोडक्ट था या ऐसा कोई प्रोडक्ट था जिसपे उन्होंने पूरा रिकॉल कर लिया. लाखों करोड़ों बॉक्सेस ऑफ मिल्क वर डिस्कार्डेड. कराची में जब शीप आई, फ्यू हैड दिस डिजीज, उस पे पता नहीं कितनी 100,000 शीप को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया. इवन इन पाकिस्तान अगर शुरू में हम उसको कैच कर लेते तो हमारे इस सिचुएशन में नहीं होता. एंड देन इट एंडेड अप विद अ मेजर एक पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड हो गया, ऑस्ट्रेलियंस कंप्लेंट कि किस तरह से हमारी शीप को मारा गया. और हम तो एज पाकिस्तानीज हमेशा कॉन्स्पिरेसी थियोरी पे बिलीव करते हैं, तो हमने कहा कि नहीं, उन्होंने मारा नहीं, उन्होंने मार्केट में डाल दिया ताकि अब जो हम गोश्त खा रहे हैं वो बीमार भेड़ों का ही गोश्त है. Whatever happened, it could have been prevented. There are always gaps and losses in our system and processes, जहाँ से वो चीजें निकल जाती हैं, स्लाइड कर जाती हैं और end up in major issues for sometime ये at the government level भी हो जाती हैं ये issues. और कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं. अभी अगर हम एग्जाम्पल्स को की बात करने लगे तो हमारा पूरा एक लेक्चर उन्हीं एग्जाम्पल्स पे खर्च हो जाएगा. द टोटल फेलियर कॉस्ट. टोटल फेलियर कॉस्ट इस वक्त जो आप देख रहे हैं इज अ अनहैप्पी कस्टमर. रिजल्ट्स इन अनहैप्पी कस्टमर. अगर आपका कस्टमर खुश नहीं है तो आपका प्रोडक्ट या आपका प्रोजेक्ट इज कंसिडर्ड नॉट जस्ट ट्रबल्ड बट इज कंसिडर्ड टू बी अ फेल्ड state, to be in a failed state. Profit loss by selling units as defects. आप ऑलरेडी अब हो गए हैं, अगर आपका 1000 का प्रोडक्ट है तो आपको पता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट को भी बेचने के लिए आपको कट बैक करनी पड़ेगी. अब 1000 का प्रोडक्ट हो सकता है 100 या 200 रुपए में डिफेक्टिव प्रोडक्ट की तरह बन के आगे जा रहा है. और ऑब्वियसली जब 1000 का जो प्रोडक्ट है अब 200 रुपए का जा रहा है तो इट्स लॉस इन प्रॉफिट, और इफ नॉट ऑलरेडी अ लॉस. द रीवर्क कॉस्ट. जो भी चीज मार्केट में चली जाती है या मार्केट में नहीं भी जाती है, पहले भी जब आप ला रहे होते हो उसको फिक्स कर रहे होते हो, रीवर्क इज वेरी एक्सपेंसिव. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं, जब उसमें इश्यूज होते हैं, अगर तो वो एंड तक चला गया, देन इफ यू हैव टू कम बैक and fix the whole system or the programming, it cost a lot of money. So fix it prior to it going ahead. Cost of processing, customer returns. सिर्फ ये नहीं है कि डायरेक्टली कस्टमर आता है और आपकी कंपनी में आके दे देता है कि इसको फिक्स करो, और वो बाहर बैठा रहता है स्टूल पे, आप फिक्स करते हैं, आप दे देते हैं. वो आपके प्रोडक्ट को जहां से खरीदता है यूजुअली वहां जाके कंप्लेन करता है या वापस करता है. ये दूसरी बात है कि हम लोगों की ज्यादातर जो चीजें हम खरीदते हैं उसके रसीदों पे क्या लिखा होता है नीचे, खरीदा हुआ माल तब्दील या वापस नहीं किया जाएगा. खैर अब बहुत जगह ऐसा होता है कि खरीदा हुआ माल आप वापस या तब्दील कर सकते हैं, मगर स्लोली एंड ग्रेजुअली हम भी डेवलप नेशंस की तरह बात करेंगे, और जब भी आपके प्रोडक्ट में इशू आएगा यू कैन इजीली गो बैक. नाउ द forefront, the store managers or the stores will take it back. Now they will not just send it directly to you. उस वक्त उन्होंने कोई पेपर वर्क किया होता है, उसका टाइम, उसकी इन्वेंटोरी का टाइम, अब उसको उन्होंने पैक किया, डब्बे में डाला और आपकी तरफ मेल किया, उसकी भी कॉस्ट आप ही इनकर करेंगे. आपके पास आता है, फिर आप पेपर वर्क खोलते हैं, उसको फिक्स करते हैं, वो भी एक कॉस्ट हो गई.
उसके बाद आपने जब उसको फिक्स किया, टेस्ट किया, वो सारी कॉस्ट डाल के फिर आपने डब्बे में डाला और अब आपने स्टोर को शिप किया, मेलिंग कॉस्ट दोबारा आ गई आपके हाथों में। फिर कस्टमर के पास जाने से पहले स्टोर अपने पास रखता है, फिर वो कॉल करता है या ईमेल जाती है कस्टमर को कि योर प्रोडक्ट हैज बीन फिक्स्ड एंड इज रिटर्न, प्लीज कम एंड कलेक्ट इट। जो आदमी उसको डील कर रहा है या स्टोर ऑलवेज टेक्स अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट, 4%, 5%, डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट, इट कैन वेरी। वो अपने पास इन सब कामों के लिए पैसे रख लेते हैं। एडिशनल कॉस्ट, जितना प्रॉफिट बनना था बन चुका है, नाउ यू आर एक्चुअली टेकिंग दिस फ्रॉम थिंग्स दैट यू मे हैव ऑलरेडी स्पेंट, द मनी दैट यू ऑलरेडी स्पेंट कि जी हमारे पास आ गई, अब आप उस पैसों से निकाल के प्रोडक्ट रिकॉल या प्रोडक्ट रीवर्क में डाल रहे हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग द कस्टमर रिटर्न्स, कॉस्ट ऑफ द वारंटी वर्क, ये भी एक बड़ा एक काम है और बहुत एक्सपेंसिव काम है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट रिकॉल्स, वो टोयोटा वाली बात तो हमने बता दी है। अमेरिका में तो ये बड़े कॉमन सी चीज है कि बच्चों के टॉयज, मटेल पूरे टॉयज हमने रिटर्न कर दिए या पूरे मार्केट में आ गया कि दिस प्रोडक्ट हैज बीन रिकॉल्ड, मिलियंस ऑफ टॉयज will be recalled and then sent back to the original company या जो भी उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे। और जब कस्टमर लेके जाता था उसको पूरे जितने में इसने खरीदा होता था वो वापस कर दिया जाता था। Sometimes they used to give them a little bonus money also। अगर 10 या $15 का टॉय होता था और जब आप उसको कंपनी में जाके वापस करते थे या स्टोर में जाके वापस करते थे तो वो 10 या 15 जितने का भी था वो पैसे भी मिलते थे और उसके ऊपर से आपको $5 और मिल जाते थे। सो ताकि इट हेल्प और encourage people to actually bring it back. They didn't want defective items. अब लगता है कि डेवलप नेशन की बात क्या ही थी, मगर बात ये है एट द बॉटम लाइन कि जो मिलियंस ऑफ टॉयज जब मिटेल के पास गए थे तो मिटेल का जो स्टॉक प्राइस थी from wherever it was, it dipped down to about 25%. So that was the cost of product recall. Cost of litigation related to products. It's all the sue कर दिया, legal issues हो गए, all that thing will come back. The opportunity cost of lost customers. अब हमने जब टोयोटा की एग्जाम्पल आपके साथ शेयर की थी तो हमने कहा था कि क्या अब बच्चों वाली माँ, छोटे बच्चों की माँ क्या रिलायबिलिटी से टोयोटास खरीदेगी? ऑल ऑफ अ सडन, इवन आफ्टर इनकरिंग ऑल ऑफ द कॉस्ट, you've lost out on this major group of people or major customer base. This would be the last slide, but let's focus on 3 areas to improve quality. The 3 areas will be, the first one is the quality of design, meeting the customer's need, design for manufacturability, and the build quality in. The quality of conformance, minimize and control process variation to satisfy the design specifications every time with some predictability in the system. And last but not the least will be the quality of service. The customer must come first. Customer खुश नहीं तो आपका प्रोडक्ट सही नहीं है। Customer खुश नहीं होगा तो project is not just trouble but should be put under the category of a failed project. With all this, I hope everybody has understood the conformance versus the non-conformance of quality. आप assignment के लिए काम करना शुरू कर दें, उसमें quality policy statement भी है, cause and effect भी है. Hopefully all that is working out pretty good. And I will see you with lecture number 14. With that, Allah Hafiz and good luck. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह.